Guys, can you see my screen? Is it visible to you? Yes, sir. Yes. Okay, that's great. So today we are going to discuss another topic uh, of the mixed design, which is probably the last topic. Uh, Probably in this class, we will discuss mixed proportioning. In our previous lectures, mixed design, we were discussing the design aspects, the design requirements, and how the design of a concrete mix is dependent upon. So we have discussed all the details, and from today on, maybe probably in today's class and the next class, we will discuss proportioning. Uh, Maybe you know probably the what is mixed design. Mixed design is basically uh, the defining the mix characteristics of a definite mixed proportioning for having the uh, the uh, the consideration of uh, the economy of the of what of the of the concrete mix, whereas the mixed proportioning is the basically the ratio of the constituents of the concrete is for a batch is known as mixed proportioning. Uh, there were so method uh, that the mixed design can be mixed proportioning can be carried out. For example, one of the oldest method used in the early 90s, 1900s, in previous century, it was still being used, and it was defined by the ACI committee. So that is the arbitrary volumetric method. 1 2 3, for example, 1 to 4 ऐसे ratio होती है ना, तो cement, sand and the coarse aggregate. So normally this is the layman design being used. So another, there are so many methods. The weight proportioning, there's another method by which the same proportioning can be done through the weight proportioning. For example, 1 to 4 ratio. The weight is fairly simple and quick for the estimation the mixed proportion. Uh, Basically, the previous one, this one, जैसे होता है ना 1 to 4 और 1 to 3 रेशो और 1 4 8 रेशो ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा. सो दिस इज लेमैन मेथड्स. इसके अलावा जो है ना, देयर आर टू अदर मेथड्स. कौन से मेथड्स हैं? वन इज द वेट प्रोपोर्शनिंग मेथड्स. वेट प्रोपोर्शनिंग मेथड जो है दैट्स थोड़ा सा इसमें क्या है, देयर इज फेयरली सिंपल एंड क्विक फॉर एस्टिमेटिंग द मिक्स. तो ये assumption बेस है. बेसिकली वी आर assuming the weight of the concrete per unit volume. For example, if the weight of the concrete is 2350 kg per cubic meter of the concrete per cubic meter, or 2400 kg per cubic meter. तो ये डिपेंड करता है, इट्स ऑल डिपेंडेड अपॉन दैट व्हाट टाइप ऑफ एग्रीगेट्स यू आर यूजिंग. तो ये एक रेंज है. फ्रॉम दैट रेंज जस्ट हम क्या क्या लेते हैं, हम उसका जो है हम नॉन डेंसिटी लेते हैं. फिर देन डेंसिटी को लेके देन बेसिकली फिर हमें डेंसिटी से हमें अंदाजा होता है पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितनी आपके पास क्या है, कितने केजी आपके पास जो है ना कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम, टोटल मास कितना है. उस मास के हिसाब से देन वी आर डिवाइडिंग द मास ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, mass of the fine aggregate, mass of the cementic material, and the mass of the water. ऐसे हम करते हैं. There is another method which is more accurate, known as the volumetric methods. It involves क्या होते हैं इसमें? It involves the use of the relative density. हम जो है relative density means specific gravity. ठीक है? Sometime in some books, specific gravity is written as
द टर्म रिलेटिव डेंसिटी। आपको पता है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है? इफ आई यूज द टर्म रिलेटिव डेंसिटी, दिस मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी। The value for all ingredients to calculate the absolute volume occupied by each other in specific unit volume of the concrete. For example, if we take unit volume of a concrete is 1 cubic meter, तो 1 cubic meter में हमारे पास जो है क्या होगा भाई, उस वॉल्यूम में हमारे पास जो है ना एयर का वॉल्यूम भी होगा, उसमें हमारे पास जो है ना वाटर का वॉल्यूम भी होगा, उसमें हमारे पास सैंड का वॉल्यूम भी होगा, उसमें हमारे पास जो है ना कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम भी होगा, उसमें सीमेंटिंग मटेरियल का वॉल्यूम भी होगा। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स शुड बी यूनिट वॉल्यूम मीन 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं ना बेसिकली बच्चों, तो उसका 1 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट वॉल्यूम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको जो है जी कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम ऑफ फॉर एग्जांपल नॉट यूनिट वॉल्यूम, मास पता है, यूनिट एग्जैक्टली मास हमें नोन है तो उसकी डेंसिटी पे डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सैंड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट। ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी नो द वेट ऑफ अ वाटर, then to convert that weight into volume cubic meter, तो हमें किस पे डिवाइड करना होगा? the density of the water, ठीक है ना? समझ आ रही है ना? if the water weigh around water weigh 200 kg per cubic meter of a concrete, ठीक है ना? तो वाटर का वॉल्यूम कंक्रीट में क्यूबिक मीटर में कितना होना चाहिए फिर? ठीक है, 0.2 क्यूबिक मीटर। 0.2 कैसे होगा? देन द वेट ऑफ वाटर कितना है? 200, तो इसको डिवाइड किस पे करेंगे? डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है? 1000 kg per cubic meter। तो okay, so if we divide that mass of the water over its density, it will give you volume, ठीक है, in cubic meter। तो वॉल्यूम कितना है? 200 divided by 1000 will be 0.2 cubic meter। So this mean 1 cubic meter of a concrete has 0.2 cubic meter of the water। सही, जब 200 लीटर पानी डालेंगे सर फिर तो इन केस इफ वी ऐड 200 kg वाटर ना इसमें हो, अगर 150 डालेंगे तो 0.15 क्यूबिक मीटर हुआ, ठीक है ना? आप थंब रूल से आप देख लें, जितने आपके पास 100 होंगे तो उसको पॉइंट से आप क्या कर दो, आप रिप्रेजेंट कर लो। तो जैसे 170 है तो दिस मीन 0.17 क्यूबिक मीटर ऑफ ए कंक्रीट, क्यूबिक मीटर ऑफ ए वाटर इज देयर इन ए क्यूबिक मीटर ऑफ ए कंक्रीट, ठीक है? So similarly, the concrete mixture is also proportioned from the field experience, statistical data from the trial mix। इससे भी आप ले सकते हैं concrete mix। For example, आपके पास जो है ना प्रीवियसली हिस्टोरिकली आपके पास कोई कंक्रीट है, जैसे न्यू एकेडमिक ब्लॉक में जो कंक्रीट यूज हुई है, तो इफ यू नो द इंग्रेडिएंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर ओन बैचिंग, फॉर एग्जांपल आप कोई कंक्रीट डिजाइन करना चाह रहे हैं, उसका जो है उसके प्रोपोर्शनिंग, उसके आपके जो सैंड है या कोर्स एग्रीगेट है या बाकी जो उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, तो they have the resemblance to the previous concrete one, तो आपको सेम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, तो देन यू कैन यूज the data of the previous data of the concrete, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? उसके लिए आप जो है ना एक और वो है कि आप ट्रायल मिक्स भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोपोर्शन में आप कंक्रीट ले लें, एक कंक्रीट भी ले लें, दूसरा भी ले लें, और देयर आर डिफरेंट कंक्रीट आप ले लें, उनका प्रोपोर्शनिंग से आप जो है से आप उससे मिक्स ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप देन यू कैन डिजाइन योर मिक्स, ठीक है ना? देयर आर सो अदर मेथड्स, ठीक है ना?
तो आजकल सॉफ्टवेयर मिलते हैं, उसमें आप प्रोपोर्शनिंग करते हैं ना मटेरियल के हिसाब से, तो देन दैट मॉडिफिकेशन जो वो होती है ना उस कंक्रीट की, तो उससे कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर आप मल्टीप्लाई करके देन यू कैन बी एबल टू हैव योर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है ना, मिक्स प्रोपोर्शन उसमें आप जो ना रख सकते हैं। तो वो जो ना यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आपका जो है प्रीवियस कंक्रीट है, तो वो जो है ना विद इन दैट लिमिट, अगर आपको टेस्ट दे रही है ना बिलो 5 मेगा पास्कल, तो दैट इज प्रीटी एक्यूरेट। ठीक है ना, तो उसके लिए आप जो ना आप 300 जो है ना क्यूब क्यूब टेस्ट करेंगे, और उन क्यूब टेस्ट अगर 300 ना हो, तो लेस देन 300 हो, देन यू नीड टू हैव मॉडिफिकेशन फैक्टर। मॉडिफिकेशन फैक्टर आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना, टेबल 12.9 थे, आप जो ना कर सकते हैं। तो अब देखें ये जो 12.9 टेबल है, सॉरी 9.11, तो उसमें जो ना you can see some modification factors. किधर गया? Modification factors, for example, if more than 30 modification factors is 1, आपको जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की कुछ, आप जो भी रिजल्ट होगा तो सेम मतलब आप ले लेंगे। इन अदर केस आप जो है स्ट्रेंथ के लिए ये मॉडिफिकेशन फैक्टर आप जो ना मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो इफ यू हैव दिस डेटा ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, पूछो, तो आपको लास्ट टाइम मैंने आपको डेटा भी दिया था कुछ, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है उसकी, कितनी आ रही थी? 4.34. 4.34. Okay, so this mean you could have a variation of 4.34. ठीक है, मेगा पास्कल, उसकी यूनिट क्या होगी? मेगा पास्कल। ठीक है ना, तो इतनी वेरिएशन आप रख सकते हैं। तो इन केस इसमें दो इक्वेशंस यूज हुई हैं, ये नीचे वाली इक्वेशन से ऑलमोस्ट सेम है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ इज लेस देन 5000 psi or 35 megapascal, so then you can use this value. So this will be the required strength must be equal to design strength plus 1.34 of standard deviation. If your standard deviation is 4, if there is a no value given to standard deviation, then take this value, आप क्या ले लो? 3.5। क्या ले लें? Assume कर लें 3.5। बचो, take this सही है value सर। as 3.5। अगर आपको जो है ना आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट नहीं की, आपके पास प्रीवियस डेटा नहीं है, तो आप अभी मिक्स डिजाइन करने लगे हैं, जस्ट पुट दिस s as 3.5। 3.5 आप पुट करेंगे तो क्या होगा? 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? हाँ, 4.7 और 4.67 इस तरह कुछ होगा ना। सही है, तो इस फैक्टर को आप क्या करेंगे? नॉट द फैक्टर, इसको आप ऐड करेंगे किसमें? आपके पास जो भी कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ है उसमें आप ऐड करेंगे। डिजाइन स्ट्रेंथ 28 डेज में कितनी आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी? फॉर एग्जांपल आपको जो है ना, फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायर्ड है 30 मेगापास्कल, तो 35 मेगापास्कल में ये चीज आप ऐड कर लेंगे, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड कंक्रीट स्ट्रेंथ। रिक्वायर्ड कंक्रीट स्ट्रेंथ क्या होती है पता है आपको? आपके पास रिक्वायर्ड कंक्रीट स्ट्रेंथ वो है मिक्स डिजाइन पे, द स्ट्रेंथ that is required to be estimated for the site for having a mixed proportioning. मिक्स प्रोपोर्शनिंग जब आप करते हैं ना, उसमें कुछ ऑफ सेट आप रखते हैं ना, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आप 1.34 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज एडिशनल वैल्यू, ये वेरिएशन आ सकती है। ठीक है ना, आपने ना इस वेरिएशन को ऑफसेट करना है। ये वेरिएशन क्यों होगी भाई? व्हाई वी कीप दिस वेरिएशन एज अपर लिमिट? सर एक सेफ्टी के लिए भी, और दूसरा सर जब कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ लॉस आता है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन में सर हैंडलिंग में हो सकता है, हैंडलिंग में इसमें ना दो तीन चीजें होंगी। एक होगा आपके पास जो ना ह्यूमन एरर, आप कोई चीज आप कैलकुलेट करते हैं या उसको जो ना कास्ट करते हैं, कास्टिंग एरर। वन इज नोन एज कास्टिंग एरर। उसमें आप प्रॉपर
कंपैक्शन आप नहीं कर पा रहे होते, आपका जो है ना प्रॉपर जो दूसरा जो फैक्टर है दैट इज मटेरियल्स। आपके पास जो ना आपने जो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है तो वो तो वो भी जो ना जरूरी नहीं है कि आपके जो ना उतनी हो जितनी आपने जो ना मतलब आपने मिक्स डिजाइन में रखी है। मे भी मतलब वो ये डिपेंड करता है ना फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग पे। फिर सिमिलरली आपके पास जो एग्रीगेट की स्ट्रेंथ है, जो इंटरफेशियल बॉन्ड बिटवीन एग्रीगेट एंड सीमेंट है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, तो उन चीजों को ऑफसेट करने के लिए आपके पास जो अननोन उसको कहते हैं आपके पास जो है ना अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट, उसको ऑफसेट करने के लिए हम क्या रखते हैं, कुछ एडिशनल वैल्यू रखते हैं ताकि अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ लोअर हो तो भी इतनी इस हद तक ही लोअर हो सके। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके तो आप देयर इज अनदर इक्वेशन, आपके पास दूसरी इक्वेशन है, इफ इट इज द मोर देन 35 मेगापास्कल, तो आपने दूसरी इक्वेशन यूज करनी है ये वाली, आप इसको इक्वेशन एफसी प्राइम प्लस 2.33 एस, एस इज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस 3.45 मेगापास्कल। ठीक है, इसको आप जो ना मतलब आप वो कंसीडर कर लें। ठीक है ना, इफ इट इज मोर देन 35 पास्कल रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर वैल्यू जो है ना उसमें है पीएसआई में है इंस्टेड ऑफ मेगापास्कल, फिर दिन आप जो है ना इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है ना, सेम इक्वेशन है, उसमें मेगापास्कल के बजाय पीएसआई है, तो ये आप रिप्लेस करेंगे। इफ इट इज, इसकी एक और इक्वेशन है 12.3, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें और इस इक्वेशन में क्या फर्क है? इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.34 s and this one is multiplied by 2.3 s. So and there is a modification factor, reduction modification factor is 0.3, 0.9, तो इससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप उनको पहले सेलेक्ट करना है, क्या पहले सेलेक्ट करना है, व्हाट शुड बी योर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, सही है ना? ये आपको जो ना आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो देन एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, उससे फिर आप वाटर सीमेंट रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंड वाटर सीमेंट रेशियो से आपने सीमेंटिंग मटेरियल आपने फाइंड करना होता है। ठीक है, तो मिनिमम सीमेंटिंग कंटेंट एंड द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, आप दो चीजें आप फाइंड करते हैं। व्हाट शुड बी, तो थर्ड जो चीज है वो मिड रन से पहले पता होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर नॉमिनल, ये भी पहले से आपके पास जो अवेलेबल स्लॉट है, आपके पास उनका मैक्सिमम साइज क्या है, आपने जो मैक्सिमम साइज की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन यू मस्ट नो व्हाट शुड बी द एयर कंटेंट योर कंक्रीट। ठीक है ना, तो इफ दैट इज द एयर एंड ड्रेन कंक्रीट, तो उसके लिए एयर कंटेंट जो है आप देखेंगे द सेवेरिटी ऑफ द फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट। इफ द इट इज सीवियर इफेक्ट, उसके लिए जो एयर कंटेंट जो है ना आपके पास मोर देन 6% होगा। इफ इट इज अ मॉडरेट इफेक्ट, ठीक है, फ्रीज एंड थॉ का, उसके लिए आप जो है ना अबाउट 5 और 4 क्या रखेंगे, क्या क्या रखोगे भाई? एयर कंटेंट, एयर कंटेंट परसेंटेज ऑफ द एयर कंटेंट। तो इफ इट इज नॉट मॉडरेट इफेक्ट, इफ इट इज नॉर्मल इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ द, उसके लिए आपने एयर कंटेंट क्या रखना है, 2% रखना है, जूम कर लें 2 और 1.5%। ठीक है ना, इट्स डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। आपने कोर्स एग्रीगेट का साइज देखना है, उसके मुताबिक आप देख लेंगे फ्रॉम द चार्ट। जैसे ये चार्ट है ना, से आप फाइंड कर सकते हैं इस चार्ट से नॉन एयर एंड ड्रेन कंक्रीट, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सा होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम आपके पास 2 तक आप जा सकते हैं। देखें ना, आपके पास हाफ इंच डाउन है, हाफ इंच डाउन मीन मैक्सिमम एग्रीगेट साइज इज हाफ इंच, तो हाफ इंच कितना होता है, 12.5, कितने मिलीमीटर होगा?
Yes sir, 12.5. 12.5, तो आप देखो इट विल बी 2.5% मैक्सिमम, ठीक है ना। तो नॉर्मल कितना आप रखते हैं, 20 mm साइज होता है ना मैक्सिमम साइज, तो 20 mm के लिए आप देखो लेस देन 2%, ऐसे ही है ना। Yes, sir. तो आपने फॉर नॉर्मल कंक्रीट कीप इट 2%, कीप इट %. सिमिलरली आपने जो ना यू मस्ट नो व्हाट शुड बी द स्लम्प रिक्वायरमेंट। बच्चों आपको पता होना चाहिए ना मिक्स डिजाइन से पहले कि आपने किस चीज के लिए आप कंक्रीटिंग करनी है, व्हाट शुड बी योर स्लम्प रिक्वायरमेंट। तो जो स्लम्प रिक्वायरमेंट होगी उसको आपने यहाँ पे अज्यूम करना है, डिजायर स्लम्प कितना है, सही है ना। तो आपके पास जो है ना बिफोर गोइंग इनटू मिक्स डिजाइन यू मस्ट नो दीज 5 थिंग्स। आपके पास ये पता होना चाहिए कि ये 5 चीजें क्या है अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ योर कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। जैसे जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स का भी पता होना चाहिए, लेकिन ये जो है ना डिजाइन पैरामीटर्स हैं इनका आपको अंदाजा होना चाहिए। स्ट्रेंथ कितनी आपको रिक्वायर्ड है जिसके लिए आप मिक्स डिजाइन करने लगे हैं, और उस स्ट्रेंथ पे आपने जो है ना मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो आपने कितनी रखनी है, या मिनिमम सीमेंटिंग मटेरियल आपको कितना रिक्वायर्ड है। आपने जो है ना मिनिमम सीमेंटिंग मटेरियल का क्या तलक है भाई, कौन बताएगा। Sometime in mass concrete, due to heat of hydration, आपके पास जो है ना there could be a detrimental effect होते हैं ना कंक्रीट पे, तो उसमें जो है ना हमने मिनिमम सीमेंटिंग मटेरियल जो है ना हम आइडेंटिफाई करते हैं इससे ऊपर ना हो। सिमिलरली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो जो है, सम टाइम हम फ्रीजिंग एंड थॉइंग के लिए हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था आपको कितनी होनी चाहिए। If we are going to design a concrete for freezing and thawing, what should be the maximum size of the water cement ratio? Maximum amount of the water cement ratio. Bachcho, anyone of you don't remember it? 0.6 तो आपको पास मैक्सिमम कैप है फॉर ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट, उससे जो ना 0.6 ऊपर होगी तो कंक्रीट विल नॉट बी ड्यूरेबल। I think 0.45 sir. 0.45 फ्रीजिंग टाइम के लिए कितना है 0.45, समझ आ रही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, सही है ना। इससे नीचे नीचे आपने वाटर सीमेंट रेशियो रखनी है। तो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से आपने वाटर सीमेंट रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे। तो इफ the amount of the water cement ratio fall above the maximum amount of the water cement ratio required, then you will take the minimum value among these two. आपको समझ आई है ये बात, नहीं आई? You got understood? नहीं सर, दोबारा बताइए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं, आपके पास है वाटर सीमेंट रेशियो किधर है, ये वाटर सीमेंट रेशियो है ना। लिसन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 25 मेगा पास्कल रिक्वायर्ड है। कितनी रिक्वायर्ड है भाई? 25 मेगा पास्कल आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। उसके लिए एयर एंड ड्रेन कंक्रीट में आपको वाटर सीमेंट रेशियो कितनी रिक्वायर्ड है? 0.52 सर। 0.52। लेकिन हमारे पास तो एक मिनिमम वैल्यू हमने मैक्सिमम वैल्यू रखी हुई है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए उसकी एयर एंड ड्रेन कंक्रीट के लिए। फिर जो है ना आपने कौन सी वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स करोगे? आई एम आस्किंग बच्चों, आपके पास दो वैल्यूज है ना, कैन यू लिसन मी सर? इसके दरमियान यस वाला सर। दरमियान वाली क्यों रखेंगे? आप देखो ना, इफ वी हैव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज 25 मेगा पास्कल, उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितनी बनती है? 0.52, सही है ना, फॉर एयर एंड कंक्रीट। बट
for considering the severity of the freezing and thawing effect, तो हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर हमें नहीं जाना। वो कितनी है? 0.45। तो हमने इन दोनों की मिनिमम हम लेंगे। मिनिमम क्या है? 0.45। 0.55। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज 40 मेगापास्कल, 40 मेगापास्कल ये कितना है? 0.34। 0.34 है ना? Yes, sir. तो वेयर एज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इज कितनी है? 0.45, 0.45। तो इस केस में कौन सी रखेंगे? 0.34. 0.34। 0.34 एग्जैक्टली, ठीक है ना? नाउ यू गॉट अंडरस्टूड। तो आपने ठीक है, इसको हाईलाइटेड वन आप नीचे से देखें। और आपकी आवाज कट रही है। द क्वांटिटी पर क्यूबिक मीटर, अब भी कटी हुई है आवाज। अब सही है सर। अच्छा, अब सही है सर। क्वांटिटी पर क्यूबिक मीटर और क्यूबिक यार्ड और कैलकुलेटेड देन, इसमें जो ना हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं उसको, जो ना कंक्रीट को क्यूबिक यार्ड में की टर्म में, टू सिंपलीफाई कैलकुलेशन एंड एलिमिनेट एरर caused by variation in aggregate moisture content. Aggregate should be pre-wetted then the dried to SSD condition। ठीक है, इस फॉर्म में हम एग्रीगेट्स को हमेशा जो है कैलकुलेशन इन्वॉल्व in mixed design always is in term of SSD। when the aggregates are in term of SSD, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? तो later on after having the mixed design then हम वाटर एडजस्टमेंट करते होते हैं। उसमें जो है कितना वाटर जो ना ऐड हो सकता है, कितना वाटर सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ऐड क्यों होगा? if aggregates are dried one होंगे तो aggregates वाटर अब्सॉर्ब करेंगे ना? Yes, Yes, sir. sir. तो to attain aggregate to SSD position, the amount of the water, जितना जो SSD पे लाने के लिए आपको जो है ना पानी रिक्वायर्ड है, हाँ, फॉर ड्राई एग्रीगेट, इतना पानी हम जो है ना वाटर सीमेंट रेशियो से जो कैलकुलेट होता है ना वाटर, वो वाटर जो है हम उसमें मजीद इतना पानी हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ इट इज 20 लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक द एग्रीगेट SSD, तो हमें 20 लीटर वाटर क्या क्या करते हैं भाई? उसमें ऐड करते हैं। On contrary, on other hand, if the moisture content is more than the SSD कंडीशन से ऊपर है, एग्रीगेट्स वेट फॉर्म में है, तो इसमें पानी ज्यादा है ना SSD से, तो जितना Yes, पानी sir. ज्यादा है SSD से, तो that amount of the water will be subtracted। ठीक है ना? किससे सर मतलब माइनस इसमें करना पड़ेगा वाटर? वो सर जो इसमें वाटर हम पर ऐड करेंगे कंक्रीट में ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर एडजस्टमेंट। वाटर एडजस्टमेंट, दैट वाटर एडजस्टमेंट बी फॉलोड एट द एंड ऑफ योर डिजाइन। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, इसमें जो है ना दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है डेंसिटी, एक होती है यील्ड। यील्ड समझते हैं? डेंसिटी तो आपको पता होता है ना कि केजी पर क्यूबिक मीटर, वेयर एज यील्ड इज द क्यूबिक मीटर को आप जो है पर यूनिट मास पे जितने आपके पास वॉल्यूम होगा, दैट इज योर यील्ड। ठीक है ना? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल मास ऑफ ए मटेरियल बेच बाय डेंसिटी ऑफ द फ्रेशली मिक्स। ठीक है, डेंसिटी को हम डिवाइड करेंगे तो देन यू विल गेट द यील्ड, मीन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल्स। सही है ना? सर ये डेंसिटी एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे सर। डेंसिटी एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी आपको। अभी आप जितना मैंने बताया है इतना आपको, तो अभी हम आते हैं हम जो है ना मोस्ट, ठीक है ना?
आपको दूसरा मेथड में करवा लूं, कौन सा वाला, ये वाला, ऊपर वाला जो वेट प्रोपोर्शनिंग वाला है, डेंसिटी वाला, यही काफी है। वॉल्यूमेट्रिक सीख लें और उससे जनाब फिर आपको मैं दूसरा बता देता हूँ कैसे कहाँ से difference आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स में क्या होता है कि आपके पास एब्सोल्यूट वॉल्यूम लेते हैं ग्रेनुलर मटेरियल्स का, उसमें जो ना सीमेंट है, एग्रीगेट्स हैं, is the volume of the solid matters in the particles, ठीक है, in the particles. It does not include the volume of the air space between particles, ठीक है। So volume of the fresh mixed concrete is equal to the sum of the absolute volume of the concrete ingredients including cementing materials, water, इसको exclude कर रहा है ना, rate of the absorbed water, ठीक है। Aggregates, volume of the aggregates, volume of the admixtures and the volume of the air, इन सब का जो वो है, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, आपका यील्ड होगी, क्या कहते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट मिक्स, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द वॉल्यूम द एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ एनी इंग्रेडिएंट्स इज कंप्यूटेड फ्रॉम द मटेरियल मास एंड रिलेटिव डेंसिटी। कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे करेंगे, फाइंड करेंगे। अब मास ऑफ लूज मटेरियल सीमेंट का जो ना हमें वेट पता है, फॉर एग्जांपल उसका सीमेंट का वेट है 400 kg, तो उसका सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा भाई, इफ इट इज 400 kg, सर रिलेटिव डेंसिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस पे डिवाइड करके उस पे उसको मास को डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है ना, सही है ना। रिलेटिव डेंसिटी मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी है, 3.15, 3.15 को मास डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी है, 1000 सर, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो 1000 kg को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.15 से, दैट इज ऑफ सीमेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास डेंसिटी ऑफ सीमेंट आ जाएगी ना। तो मास ऑफ द सीमेंट, इफ मास ऑफ द सीमेंट इज 400, then that should be divided by the density of cement, so you will get the volume of the cement, समझ आते ना। तो आप देखो इधर नॉर्मली आपके पास रिलेटिव डेंसिटी आपके पास जो ना गिवन है, सीमेंट हमेशा जो है सीमेंट ही कितनी होती है 3.515, if the cement is blended with what, with fly ash or with other ingredients, तो आपकी वो वेरी करती है 2.9 to 3.15, 3.15 से ऊपर हो ही नहीं सकती ना। in case of pure cement it will not be, तो सीमेंट इज ब्लेंडेड वन, तो ब्लेंडेड होगी तो उसमें जो है ना, जो ब्लेंडिंग मटेरियल है उसकी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है ना, तो उसको हम जब सीमेंट में ब्लेंड करेंगे तो दैट विल ब्रिंग द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फ्रॉम 3.15 टू सम लोअर वैल्यू, तो कहां तक ले आएगी, 2.9 तक लाएगी, ठीक है ना, इससे नीचे नहीं होगी। तो इसके बीच में ये वेरी करती है, 2.9 से नीचे क्यों नहीं होगी भाई, because cement is replaced with some proportion, for example 30%, 40%, 25%, इतना proportion से हम उसको करते हैं ना, तो इसकी डेंसिटी जो है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है ना वो भी होती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्लेग क्या होती है 2.89 और 2.9, इन केस ऑफ फ्लाई ऐश वो कितनी होगी 2.8, 1.9 to 2.8, नॉर्मली 2.4, 2.5, 2.4, 3-4 इस तरह होती है ना। तो इफ इट इज एडेड 2.3, तो if it is added with the amount of 30% by the weight of the cement, तो आपके पास 30%, 70% सीमेंट है और 30% उसमें क्या है, फ्लाई ऐश है, और फ्लाई ऐश की जो डेंसिटी है 2.6 है और सीमेंट की 1.35 है, तो कितनी आपके पास एवरेज कितनी बनेगी, आप जरा कैलकुलेट करो शाबाश। चले इतना मतलब आपके पास 2.9 या इस रेंज में होगी। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी
of silica fume can be varied between 2.2 to 2.25. तो इसकी वेरिएशन बहुत कम है, क्यों भाई? अब फ्लाई ऐश में देखो ना, वेरिएशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिका फ्यूम। जी तो ना, क्यों वेरिएशन क्यों कम है? पूछो। सर वो फ्लाई ऐश जो है ना सर, उसमें डिफरेंट मतलब कोल की कंबस्शन से रिलेटेड है, तो उसमें वो वेरिएशन ज्यादा आता है। फ्लाई ऐश की जो है, जो टाइप की वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एफ क्लास फ्लाई ऐश जो है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द क्लास सी फ्लाई ऐश। और सिमिलरली सिलिका फ्यूम ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें जो है ना मोस्टली ऑलमोस्ट 90% उसमें सिलिका होता है, SiO2 होता है, ठीक है। उसमें वेरिएशन के जो कंटेंट है वो 10% है। तो 10% जो ना मतलब जो वेरिएशन कंटेंट है वो बहुत अफेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए सिलिका फ्यूम की जो वेरिएशन होगी वो बड़ी कम होगी, ठीक है। बच्चों और सर ये वाटर में साल्ट्स की वजह से आती है क्या चीज? ये वेरिएशन जो आ रही है नीचे, मतलब वाटर में क्यों आ रही है? वाटर में नहीं आ रही सर, लेकिन बाद का तो मतलब अगर हम सी से वाटर ले रहे हैं तो उसमें तो साल्ट्स भी ऐड होंगे, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। नीचे वाटर नहीं है बेटे, सही है सर। वाटर लेना ट्राई है तब गेट पे यूज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है? अच्छा, मुझे ऐसा ही आपने बता दिया। Now my voice is clear to you? यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay, that's great. हम कहाँ पे थे? किधर से आपको वॉइस का मसला हुआ? सर साल्ट का Water क्वेश्चन मैंने में। पूछा था सर। सॉल्ट का। तो सॉल्ट में जो है, सॉल्ट वाटर आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इफ you will use in case of the salt water, salted water, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो है ना, जो जजमेंटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके वाटर के अंदर, जो उसके अंदर केमिकल्स हैं, दैट विल डिटोरेट योर कंक्रीट मिक्स। उसको जो है जो उसकी जो फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज है या हार्डन कंक्रीट प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली जो ड्यूरेबिलिटी है या रीइंफोर्समेंट है कंक्रीट के अंदर जो आरसीसी यूज होती है, तो उसको जो ना वो टेस्ट नेस कर देंगे, ठीक है। तो इट विल डिस्ट्रॉय योर मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स आपके पास जो है ना वो हो गया ना, मिक्सिंग प्रोपोर्शनिंग की जो जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्टर्ब करेगी। तो सिमिलरली इफ आपने क्या यूज करना है हमेशा वाटर में, कौन सा वाटर टाइप हो, वाटर की क्वालिटी क्या हो, ड्रिंकेबल वाटर हो। आपने जो ना जिस वाटर को कोई पी सके, सही है ना, वो यूज करना है। अगर ड्रिंकेबल वाटर आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन यूज अ टैप वाटर। आपने नाले वाला पानी में इस्तेमाल नहीं करता। उसमें क्या होगा, ड्रेन वाटर में Bacteria वगैरह। अल्कली उसमें सस्पेंडेड सॉलिड होंगे ना। तो सस्पेंडेड सॉलिड जो है ना मोस्टली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, वो भी डिके होके कंक्रीट में कैविटीज का कॉज करेंगे। तो आपने क्या यूज करना है, आइदर यूज ड्रिंकेबल वाटर और टैप वाटर। टैप वाटर नहीं होता है, जो आम वाटर होता है, सही है ना। तो हम जो है देखते हैं वाटर जो है ना, जैसे ही पानी जो ना जहां से हमें मिल जाए तो वाटर, हम कहते हैं वाटर इज वाटर, ठीक है। ठीक है ना, वाटर की देयर मस्ट बी सम क्वालिटी ऑफ वाटर दैट कुड बी यूज्ड इन कंक्रीट, ठीक है। तो उसकी जो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होती है, 1 होती है। और उसकी डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg per cubic meter होती है, सही है ना। और इफ इट इज रिप्रेजेंटेड इन पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, इट विल बी 62.4 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, ठीक है ना।
आपके पास अगर डेटा जो है इस किस्म का गिवन हो ना फाउंड फुट पाउंड का, तो आपने इसको क्यूबिक मीटर इसमें केजी पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर ये गिवन हो तो आपने इधर कन्वर्सली आपने वो डेटा यूज करना है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है तो आपने एम सिस्टम में आप यूज कर रहे हैं तो यूज द ऑल वैल्यू फॉर द एम सिस्टम। ठीक है ना, स्टैंडर्ड सिस्टम। तो अगर आपने यूज करना है ब्रिटिश सिस्टम यूनिट्स का, तो देन यूज ऑल यूएस कस्टमरी और ब्रिटिश सिस्टम। तो उसके लिए क्या आप यूज करोगे, फुट पाउंड सिस्टम है ना। फिर आपने स्ट्रेंथ भी पीएसआई में रखनी है, फिर आपने जो है ना मेजरमेंट फुट में रखनी है, फीट में, और आपने जो ना उसका जो वेट है वो आपने पाउंड्स में लेना है इंस्टेड ऑफ केजी। सही है ना, वेट और मास। सिमिलरली relative density of normal way aggregates जो है ना, whether these are the fine aggregate or the coarse aggregate, will range between 2.4 to 2.9, इनके बीच में आपको रेंज आएगी ना। ठीक है ना, तो एग्रीगेट्स आप यूज करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एग्रीगेट फॉर हैविंग ए रिलेटिव डेंसिटी और द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2, वो बहुत कम होगी। एग्रीगेट की टाइप जो ना, दिस मीन दैट इज नॉट मेड ऑफ रॉक, वो एग्रीगेट आर्टिफिशियल हो सकते हैं और लो ग्रेड रॉक से हो सकते हैं, जैसे शेल है या कुछ इस तरह जो ना क्ले से बने हुए हैं एग्रीगेट्स। ठीक है ना, तो सिमिलरली 2.9 जो है उससे ऊपर जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दैट विल बी एग्रीगेट्स ऑफ द हेवी वेट, हेवी वेट एग्रीगेट होंगे ना। सही है, नॉट विल बी नॉर्मल एग्रीगेट। नॉर्मल एग्रीगेट की क्या है वेरिएशन, 2.4 टू 2.9। तो सिमिलरली आप यहां पे देखें, एब्सोल्यूट वॉल्यूम फॉर एयर is expressed in term of cubic meter per cubic meter of concrete. concrete तो cubic meter में है ना, तो if the air content is 7%, तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, who will tell me, देख के बता दो। सवाल Any क्या other है? हाँ, सवाल क्या है सर? सवाल ये है परसेंट में होगा सर फिर। परसेंटेज में, इफ इट इज 7% तो कितना वॉल्यूम होगा फिर, 1 क्यूबिक मीटर का कितना होगा। If the air content is 7%, what will be the air amount in terms of cubic meter? 0.07. Exactly, 0.07 cubic meter will be your air in the concrete of 1 cubic meter concrete. ठीक है, 1 cubic meter में जो एयर का पोर्शन है वो क्या होगा, 0.07 cubic meter। ठीक है, इन केस द एयर कंटेंट इज 7%। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना एक एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल में ना बहुत ज्यादा मैंने वेरिएशन रखी है। सही है, और उस एग्जांपल से जो है आपको बहुत सारी चीजों का जो ना थोड़ा सा अंदाजा होगा कि चीजें कैसे चलती हैं इन द मिक्स डिजाइन। ठीक है ना, क्वेश्चन है उसको रीड आउट करते हैं। आप मेहरान साल पढ़ो सर, आपको नजर आ रहा है। Sir, concrete is required for a pavement that will be exposed to moisture in a severe freeze-thaw environment. अच्छा, फ्रीज था, इसको थोड़ा साथ साथ एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। ठीक है ना, दिस कंक्रीट इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट डिजाइन। पेमेंट किसको कहते हैं, रोड के लिए कंक्रीट जो ना डिजाइन हो रही है, तो वो जो है ना स्वेयर फ्रीजिंग थाइंग को भी एक्सपोज्ड है। ये जो है ना मेनली जितने भी रोड्स होते हैं ना, आपको जो ना एक और मतलब बता चलूं, आपके कौन से प्रोफेसर हैं आपके इधर, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कौन पढ़ा रहे हैं आपको? सर अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे सर, शिराज पढ़ेंगे। शिराज साहब से, तो आपने उनसे स्पेशल सवाल करना है कि ये जो आपके पास जो है ना हाई जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, माउंटेनियस रीजन होते हैं जहाँ पे फ्रीजिंग टाइम इफेक्ट होता है, वहां पे रोड जो ना कंक्रीट के क्यों बने होते हैं? व्हाई दोज रोड्स आर नॉट मेड ऑफ दी असफॉल्ट पेमेंट? ठीक है ना, आपने ये बात पूछनी है। ठीक है ना, तो ये आपको मैं इतना बताता हूँ यहाँ पे कि कंक्रीट के जो रोड जो ना जो जहाँ फ्रीज था is susceptible, anything that is susceptible for freezing thawing effect, तो वहां पे जो रोड्स होंगे वो किसके बने होंगे, कंक्रीट के होंगे। ठीक है,
आगे जाएं। स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आपने इस पे यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, इधर पॉइंट टू बी नोटेड, आपने पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो पॉइंट आपने क्या नोट किया? सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट देखना है, ठीक है, आगे जाते रहें। A specified compressive strength of 35 megapascal is required at 28 days. तो कितना डिजाइन स्ट्रेंथ आपकी कितनी है? 35 मेगापास्कल। अच्छा आगे जाएं। एयर एंट्रेनमेंट इज रिक्वायर्ड। एयर एंट्रेनमेंट भी रिक्वायर्ड है। एयर एंट्रेनमेंट इज रिक्वायर्ड इसलिए है कि टू अवॉइड दैट फ्रीजिंग थॉइंग इफेक्ट, ठीक है। हाँ आगे जाएं। स्लम्प शुड बी बिटवीन 25 mm and 75 mm। स्लम्प का जो है ना, वो जो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें वो है, क्या कहते हैं, चूंकि पेवमेंट डिजाइन है, पेवमेंट इज ए काइंड ऑफ स्लैब होती है ना नीचे ग्राउंड पे जो हम डालते हैं, तो उसमें आपको मिनिमम स्लम्प रिक्वायर्ड होता है, तो दैट इज 2.25 mm टू 75 mm। तो इंचेस में कितना होगा? 1 इंच, 1 to 3 इंच, ठीक है। 1 to 3 इंच स्लम्प जो है ना बहुत कम होता है। आगे जाएं। नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट ऑफ 25 mm इज रिक्वायर्ड। जी बिल्कुल, आपने स्लम्प को भी आपको वो नजर लगाया है, आपके पास इतना ये इस रेंज में है, और मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट आप इस रेंज में है। ये मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट ना हर जगह यूज होगा। आगे जाए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा है, आगे जाए। No statistical data on previous mixtures are available. No statistical data is required। तो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे अज्यूम करनी है। आगे जाएं। The material available are as follows: cement। अच्छा, और मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। अब सीमेंट में आपको सिर्फ जो ना सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी रिक्वायर्ड है ना, और रिलेटिव डेंसिटी, तो वो कितनी है? 3.0। 3, ठीक है, 3.0। आगे जाए। कोर्स एग्रीगेट में सर 25 mm मैक्सिमम साइड राउंडेड ग्रेवल है। अच्छा, इस पे आपने ध्यान देना है। इधर क्या है? राउंडेड ग्रेवल है। क्या है? एग्रीगेट इज राउंडेड ग्रेवल, नॉट द क्रस्ट वन, ठीक है। इस पे ना आपको मैं आगे चीज एक बताऊंगा। आगे जाएं। Relative density equal to 2.68, absorption is equal to 2.5% of absorption for what? Water absorption. What absorption mean? Water absorption to make aggregate for SSD. To attain aggregate at SSD, the concrete have the tendency to absorb 0.5% water. जी आगे जाएं। Whereas the available moisture content is 2%। अच्छा, अब एग्रीगेट अगर ड्राई हो ना, तो ड्राई एग्रीगेट कितने परसेंट वाटर अब्सॉर्ब करें? 0.5% वाटर अब्सॉर्ब करें तो एग्रीगेट SSD हो जाएंगे। बट एट हियर वी हैव ऑलरेडी 2% वाटर इन एग्रीगेट्स। नहीं समझे? समझ नहीं आई? आ गई सर, आ गई है। तो आपके पास अगर इफ एग्रीगेट अगर ड्राई होते ना, तो उसमें 0.5% वाटर आप ऐड करते तो एग्रीगेट SSD में हो जाते। लेकिन हमारे पास जो है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है इन एग्रीगेट इज 2%, व्हिच इज far more than the aggregate to attain SSD position। to attain SSD position, SSD क्या होता है? सर जब surface dry is completely filled up। SSD is the abbreviation for saturated surface dry। Saturated surface dry aggregates are those saturated inside but the surface is dry, ठीक है। अच्छा, and the roded bulk density is 1600 kg। अच्छा, आपने अभी देखा है यहाँ पे बच्चों, आपने कोर्स एग्रीगेट में आपको डेटा कौन सा रिक्वायर्ड होता है? 6 किस्म का डेटा रिक्वायर्ड होगा ना कोर्स एग्रीगेट के लिए। 6 टाइप ऑफ डेटा आपको रिक्वायर्ड है कोर्स एग्रीगेट के लिए। कौन सा 6 टाइप, 6 टाइप? मेहरान सर मैक्सिमम साइज हो सकती है, मैक्सिमम साइज 1, और सर शेप हो सकती है, शेप ऑफ द एग्रीगेट गुड, SSD ये रिलेटिव पोजीशन डेंसिटी हो सकती है, अब्जॉर्प्शन हो सकती है, मॉइस्चर कंटेंट हो सकती है,
और Yes, रॉडेड बल्क डेंसिटी हो सकती है, रॉडेड बल्क डेंसिटी हो सकती है। अच्छा, रॉडेड बल्क डेंसिटी वेरी करती है 1550 टू 1680 केजी तक, 1700 तक, ठीक है ना, केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। रॉडेड का बल्क डेंसिटी मीन के आपको जो है ना एग्रीगेट्स को रॉडेड में आप जो है ना कंपैक्ट करें और उसकी जो ना लूज ना हो ना एग्रीगेट, रॉडेड कंपैक्टेड हो, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। नाउ मूव टू दी फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में क्या है, आप पढ़ें जरा थोड़ा सा। Natural sand with relative density 2.64 and absorption equal to 0.7%. हाँ, Moisture content equal to 6% and the finest matter is equal to 2.80. एग्जैक्टली इसमें वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट सिमिलरली आपने कोर्स क्रिएट की तरह ही है, वेयर एज द फाइनेस्ट मॉड्यूलस आपने जो ना एडिशनल आपने मेजर करते हैं। फाइनेस्ट मॉड्यूलस लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट करवाई थी ना आपको Yes, बच्चों। sir. yes sir, तो cumulative फाइनेस्ट sum. मॉड्यूलस की क्या वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, और रिलेटिव डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो है ना दो जो आपके पास जो है ना आपके पास शेप ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स आपको नहीं, आपको जो ना आपने मालूम नहीं करने, और आपने ये चीज भी फाइंड नहीं करनी कि उसका फाइन एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज है वो भी कैसे होना है, वो भी नहीं करना। जस्ट आपने क्या देखना है, फाइनेस्ट मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। You know these 4 properties of fine aggregate and 6 properties of coarse aggregate and 1 properties of cement, so then you are able to do mixed design, or you are able to execute the calculation for mixed design, ठीक है ना। अच्छा, वुड रीजन जो ना वो कहता है यूज करते हैं हम एयर रिटेनमेंट मिक्सर के लिए, वेयर एज द वाटर रिड्यूसर वो कहता है यूज होगा। आप बताएं अभी क्या होता है, कैसे आप जनाब मेहरान पढ़े हम। This particular mixture is known to reduce water demand by 10% when used at a dosage rate of 3 gram per kg of cement. जी जी, Assume that the chemical admixture have a density close to that of water, meaning that 1 milliliter of admixture has a mass of 1 gram. एग्जैक्टली आपने ना, आप वो कहता है कि आप 10% आपने अगर वाटर रिड्यूस करना है तो आपने कितने किस वेट से डालना है, 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीमेंट, पर केजी जितने सीमेंट होगी उस हिसाब से आपने हर केजी के हिसाब से 3 ग्राम डालना है। इफ द सीमेंट वेट इज 400 केजी तो कितने ग्राम आपने डालना है वाटर रिड्यूसर, 1200 हो जाएगा फिर, 1200 ग्राम, ऐसे ही है ना। अच्छा, 3 ग्राम पर केजी को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंट होगा, परसेंट 0.03 सर। 0.03%, 0.03% आप कह सकते हैं कि 0.03% ऑफ द सीमेंट वेट आपने क्या यूज करना है, वाटर रिड्यूसर टू रिड्यूस water content by 10%, to reduce water content by 10%. If we are using water 200 liter or 200 kg, तो उस केस में 10% रिड्यूस होगा तो कितना हो जाएगा, पानी हमारे पास पीछे कितना रह जाएगा, 180 रह जाएगा ना। Yes, 10% अगर हम रिड्यूस करेंगे। अब देखो ना, अगर सीमेंट अमाउंट जो है ना कंक्रीट मिक्स में फॉर क्यूबिक मीटर कितनी है, क्यूबिक मीटर के लिए सीमेंट अमाउंट जो है ना 400 केजी है, तो उस हिसाब से हमने 1200 ग्राम जो है ना 1.2 केजी आपने क्या ऐड करना है, ये केमिकल एडमिक्सर आप ऐड करेंगे फॉर क्यूबिक मीटर ऑफ ए कंक्रीट फॉर हैविंग सीमेंट कंटेंट 400 केजी, उसमें कितना यूज करेंगे, 1.2 केजी आपने क्या यूज करना है, water reducer, or that water reduce 1.2 kg of that water reducing agent will reduce 20 liter of a water. तो अगर if in case water जो है ना 200 लीटर हो तो 20 लीटर जो है वाटर जो है ना रिड्यूस हो जाएगा 10% के हिसाब से, सही है ना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि 20% जो है ना हमने वो करना है, रिड्यूस करना है, फिर क्या करेंगे, डोज को डबल हो जाएगी ना,
Yes, Super sir. plasticizer we use for sir. That's what I wanted to convey. ठीक है, आपको समझ आ गई है क्वेश्चन? Yes sir, yes sir. तो क्वेश्चन में ये पूछना क्या चाह रहा है आपने, जो ना किधर लिखा है, क्या पूछना चाह रहा है? ये सर मिक्स प्रोपोर्शनिंग कर दिए सर. तो कहाँ पे लिखा है मिक्स प्रोपोर्शनिंग डिजाइन करें? That concrete is required. डेटा से सर पता चल गया. एग्जैक्टली, ठीक है ना, कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, तो ये इसके लिए कंक्रीट रिक्वायर्ड है। और क्या आपके पास मिक्स डिजाइन होगा ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो स्ट्रेंथ जितनी आपको स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ कितनी गिवन कितनी है, 35 मेगा पास्कल गिवन है ना। तो आपने जो मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है फ्रीजिंग टाइम के लिए वो कितनी होती है, 31 मेगा पास्कल। अब देखो ना, इसमें जाओ ना टेबल में, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है फॉर फ्रीजिंग एंड थाइंग, स्फीयर फ्रीजिंग एंड थाइंग, इधर देखो। ये 4500 psi सर. 4500 psi और 31 MPa. 31, ठीक है ना। कंक्रीट एक्सपोज टू फ्रीजिंग एंड थाइंग इन मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है ना। और उसके लिए आओगे वाटर सीमेंट रेशियो कितनी है, 0.45 मैक्सिमम साइज वो है ना। तो इससे नीचे नीचे जितनी अवेलेबल हो सके, लेकिन इससे ऊपर ना जाए वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज कट रही सर. आवाज कट रही है, कोई इशू नहीं है, खैर मैं आपको नजदीक होकर बोलता हूँ। अच्छा, तो वाटर सीमेंट रेशियो आपको कितनी रिक्वायर्ड है, 0.45 0.45. 0.45 रिक्वायर्ड नहीं, आपके पास मैक्सिमम जो ना कितनी होनी चाहिए ना, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। तो उसके लिए अभी आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ वहां पे 35 मेगा पास्कल तो आपके पास रिक्वायर्ड थी, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ थी, व्हिच इज मोर देन दी अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ that is needed for the freezing and thawing, which is 31 megapascal। तो 35 है तो आपने 35 वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रेंथ जो है ना 25 होती, तो इन केस इसकी जगह 35 की जगह, तो आपने फिर क्या जूम करना था, कौन सी स्ट्रेंथ जूम करनी थी बच्चों नेक्स्ट डिजाइन के लिए, 31 मेगापास्कल इन दैट केस। समझ नहीं लगी आपको? सर ये रिपीट कर दे। सर. इन दोनों में मैक्सिमम लेना है सर. इन दोनों का मैक्सिमम लेना है यार। सही है सर. तो अगर 35 है ना, इसमें 35 हम ले रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ 35 हेड दिस बी 25, तो क्या आपके पास वैल्यू होती, फिर अगर 35 की जगह 25 होती, तो इन दैट केस आपने क्या लेते, आप 31 लेते थे, 31 पास्कल. ठीक है। अच्छा, आपने मॉडिफिकेशन फैक्टर आपने वो कहता है कि इफ इट इज फॉर फ्रीजिंग एंड थॉइंग, टेबल 12.10 से आपने क्या लेना है, तो कैसे आपने ऐड करना है फॉर द टू हैविंग रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, 12.5, दिस वन इज देयर। तो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन आपने देखो ना यहाँ पे लेनी है, लिसन बच्चों। तो आपके पास जो है ना डेटा इफ इज वेल नॉट अवेलेबल टू यू, तो आपने क्या वैल्यू जूम करनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद वो फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो इफ इट इज लेस देन टू 21 मेगापास्कल, तो आपके पास क्या होगी, आपने रिक्वायर्ड एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ will be your design strength plus 7, but here your value is about is 35 megapascal, so this will be your design strength fc prime plus 8.5 megapascal। तो ये जो ना वैल्यूज होंगी, ठीक है, समझ आ रही है? यस सर. सर ये 43.5 हो गया. हाँ जी हाँ। तो वाटर टू सीमेंट रेशियो अब कैलकुलेट होगी। तो वाटर टू सीमेंट रेशियो 35 के लिए कितनी है भाई? अच्छा, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो फॉर फ्रीजिंग टाइम एनवायरनमेंट के लिए लिखा है शुड बी मैक्सिमम शुड बी 0.45, ठीक है, मैक्सिमम शुड बी 0.45। तो लेकिन ये है कि हम रिकमेंडेड कितनी होगी 43.5 मेगापास्कल के लिए, हाँ 3.1 फ्रॉम द फिगर, 3.1 हमने इधर से लिया, फिगर से
ये देखो ना, एयर एंड टेन कंक्रीट, दिस वन इज एयर एंड टेन कंक्रीट ना। तो आपने यहाँ पे आप देखो ना, तो दिस इज 45 मेगापास्कल। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हाँ, 0.3 0.3 या 0.31। तो लेकिन ये एग्जैक्ट तो आप नहीं फाइंड कर सकते ना, तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करें। किससे कैलकुलेट करें? इंटरपोलेशन करें यहाँ से। तो आप देखो ना, 45 और 40 के बीच में है ना वैल्यू बच्चों। यस सर Yes, sir. For 40 it is 3.4. For 45 it is, for 45 megapascal it is 0.3. 30 0.30. 0.30। तो इसको आप जो ना इंटरपोलेट करें। इंटरपोलेशन क्या कैसे करेंगे? y1 y minus y1 plus divided by x minus x1 must be equal to y2 minus y1 x2 minus x1। इसको डिवाइड कर लें। तो आपने इसको कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला है, इसके मुताबिक आप पुट करें वैल्यू, तो देन यू विल गेट दी। तो आपने इस वैल्यूज को आप लिखें, आप इसको क्या रखें? इसको y आप रखें जनाब, y1 रखें, और इसको x1 रखें। 45 को क्या रखें? x1 रखें। 40 को x2 रख लें। और 34 को y2 रख लें। वेयर एज x वैल्यू आपके पास कितनी है? 43.5। 43.5। तो आपने वैल्यू पुट करनी है, तो देन यू विल गेट दी इंटरपोलेटेड वैल्यू 3.1 0.31 सॉरी 0.31। वाटर सीमेंट रेशियो आपके पास क्या होगी? 0.31। सही है ना? आ जाए एयर कंटेंट पे, ठीक है ना। पहले आपने स्ट्रेंथ फाइंड अब देखनी है, उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो में देखनी है, फिर आप एयर कंटेंट पे जाएं। एयर कंटेंट आपको रिक्वायर्ड कितने हैं भाई? और वो स्फीयर फ्रीजिंग थॉइंग है ना, एक्सपोजर। फॉर स्फीयर फ्रीजिंग थॉइंग एक्सपोजर आपने किस पे जाना है? बड़ा देखना है आपने एक्सपोजर पे। स्फीयर के लिए आपके पास ये लाइन है ना, तो दिस ग्राफ इज गिवन फॉर द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो आपके पास नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट क्या है? आर यू लिसनिंग मी गाइस? Yes, sir. What should be your nominal maximum size of course aggregate? अब लगता है बोर हो गए हैं। सर ये 25 है सर। 25 है ना, बोरिंग है? नो सर वो नहीं सर, ये तो स्लाइड्स बहुत के लिए जाना अच्छा पड़ता है सर। किसके लिए जाना पड़ता है? स्लाइड में सर वो वैल्यूज देखनी होती है। वैल्यूज देखनी होती हैं। अच्छा, 25 मेगापास्कल है, तो 25 मेगा नहीं सॉरी 25 क्या है, mm है, इज द साइज ऑफ योर कोर्स एग्रीगेट। तो आपने इसमें देखना है, स्फीयर पे आपने चेक करो। तो इसके लिए आपके पास क्या बनता है? मैक्स 6, if the air content is 6% in concrete, then your concrete will be durable against severe exposure of freezing and thawing. समझ आ रही है ना बच्चों? Your concrete will then be safe for what? For freezing and thawing if it has 6% air content. ठीक है, 6% एयर कंटेंट हो, तो 6% एयर कंटेंट रखने के लिए हमें जो एयर कंटेंट जो ना 8% के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जो ना 2% जो है ना कुछ एरर भी हो सकता है ना। समझ आ रही है ना? तो हमें वो कह रहे therefore the design mix for the 5% to 8% एयर, तो यूज 8% आप यूज करें फॉर द बेचिंग प्रपोर्शन। ट्रायल बेच में आपने क्या रखना है? 0.5%
आपने क्या करना है, पॉइंट रखना है लोएबल, आपने कंटेंट की वेरिएशन रखनी है। स्लम्प वैल्यू क्या है, गिवन है स्लम्प 25 to 75 गिवन है ना हमें। स्लम्प जो ना Yes, हमेशा फॉर द साइट रिक्वायरमेंट होती है। आपने ना मतलब स्लम्प आप डिजाइन नहीं करते होते, हमेशा स्लम्प जो है ना जो आपको रिक्वायर्ड होता है उसके मुताबिक आप जो है ना आप वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। वाटर कंटेंट किससे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है ना, वाटर कंटेंट जो है ना टेबल से कैलकुलेट होते हैं। टेबल 12.5 ऑफ द बुक आई एम यूजिंग इट, ठीक है। तो उस बुक जो हम यूज कर रहे थे तो उसमें 12.5 टेबल है। तो उसमें जो है ना आपके पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। वन शुड बी योर स्लम्प साइज, कितना स्लम्प है, एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर सेग्रीगेट। आपको ये दो पता है तो देन यू कैन नो द योर व्हाट, क्या आपको पता, आप बता सकते हैं योर वाटर कंटेंट, what ठीक है। water? अच्छा, तो आप देखो ना वाटर कंटेंट के लिए दो आपके पास टेबल्स हैं। वन टेबल इज फॉर नॉन एयर एंड कंक्रीट एंड वन टेबल इज फॉर एयर एंड कंक्रीट। गो टू दी एयर एंड कंक्रीट, एयर एंड कंक्रीट है ना। तो आपके पास जो है ना क्या है, अब कोर्स एग्रीगेट का नॉमिनल साइज कितना है, नॉमिनल मैक्सिमम साइज इज 25%, 25 mm, वेयर इज कितना है, साइज क्या था भाई, 75, 25 to 75 25 to 75, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप ले लो विच इज 75, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए आपके पास वाटर कंटेंट क्या कैलकुलेट हुए, 175 175 व्हाट, क्या यूनिट होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ क्यूब मीटर ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। ये यूनिट लिखी है ना, सही है ना, समझ आ रही है। वाटर Yes, कंटेंट sir. विल बी, Yes, sir. अच्छा, अब जो है ना अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। नाउ यू आर यूजिंग द राउंडेड ग्रेवल। तो राउंडेड ग्रेवल जो है, जब राउंडेड ग्रेवल होंगे तो राउंडेड ग्रेवल है द कैपेसिटी टू रिड्यूस वाटर कंटेंट बाय 25 kg पर क्यूबिक मीटर। 25 kg पर क्यूबिक मीटर जो है वाटर कम हो जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग द राउंडेड एग्रीगेट। समझ आ रही है ना। तो आपके पास 175 kg पर क्यूबिक मीटर आप वाटर यूज कर रहे हैं। 175 kg ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर अ क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। दिस विल बी रिड्यूस्ड बाय 25 kg पर क्यूबिक मीटर पे हम रिड्यूस करेंगे ना। तो आपके पास कितना वाटर रह गया पीछे, 150. 150। अगर इन केस राउंडेड एग्रीगेट ना होते तो ग्रेवल जो है हमारे पास जो है क्रस्ट एग्रीगेट होते, तो वो हमने जो ना क्या यूज कर, हमने हमारे पास वाटर कंटेंट कितने थे फिर 175 kg। तो 125. अब 25 kg कम क्यों हो गए भाई, राउंडेड की वजह से। राउंडेड की वजह से, राउंडेड वर्कबिलिटी ज्यादा कर देते हैं तो राउंडेड वर्कबिलिटी को ज्यादा करता है। तो उसलिए जो ना मतलब आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर जो है हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 150 है तो वो कहते हैं 10% इसका भी रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा भाई, वाटर रिड्यूसर यूज किया है ना सर, वाटर रिड्यूसर यूज किया है। तो वाटर रिड्यूसर 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीमेंट वेट के हिसाब से हम अगर यूज करेंगे तो आपके पास कितना रिड्यूस हो जाएगा, 10% होगा। तो 10% रिड्यूस करो तो कितना आपके पास वाटर रह गया, 135 kg पर क्यूबिक मीटर आपके पास वाटर रह गया। वेयर एज द वाटर सीमेंट रेशियो कितनी है इसमें, वेयर एज द वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.3। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट सीमेंट कंटेंट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर कंटेंट गिवन है और वाटर सीमेंट रेशियो भी गिवन है, ठीक है ना। इफ द वर्ड वी डिवाइड वाटर कंटेंट विद द सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो वी विल गेट द सीमेंट अमाउंट। जैसे यहां पे है ना, सीमेंट कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे, सीमेंट कंटेंट को हमने उसको उसको डिवाइड किया है वाटर कंटेंट को 1.3 पे, तो देन यू विल गेट दी सीमेंट अमाउंट। सीमेंट अमाउंट कितनी आपके पास आ गई है, 435 435। पर। तो ये कहां से आई है, ये वाटर टू सीमेंट रेशियो जरा मैं पता था और वाटर कंटेंट भी पता था। तो अच्छा। तो अब हमें कोर्स एग्रीगेट फाइंड करना है। अच्छा, कोर्स एग्रीगेट जो है आपके पास, कोर्स एग्रीगेट का कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास दो
तरीके से फाइंड करेंगे कोर्स एग्रीगेट, दो तरीके से नहीं, दो स्टेप में फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, आपके पास मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट गिवन है और आपके पास फाइन एग्रीगेट की फाइनेंस मॉडुलस भी गिवन है। फाइनेंस मॉडुलस वाज 2.8, ठीक है। तो उससे आपने क्या करना है? बल्क वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपने फाइंड करना है। बल्क वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो कितना है आपके पास? ये आपके पास है इस 12.4 टेबल से फाइंड करना है। अब देखो ना, मैंने टेबल इस तरह रेंज किए हुए हैं कि हर वैल्यू के साथ जो ना अगले पेज पे टेबल आपको मिलेगा। तो आपने ये जो मेरी स्लाइड्स हैं तो आपने गुम नहीं करनी। तो देन you will be able to mix design of anywhere with any quantity of your aggregate size and the strength of the concrete, ठीक है ना। तो आप देखो, अब तो आपके पास 25 टाइम क्या है बच्चों? टाइम 10-12। तो हम जो है ना मैं इसको क्लोज करूंगा क्लास को और जस्ट 1 मिनट लेके, ठीक है। तो आपने देखा है, इससे आगे फिर आगे कर लेंगे। तो 25 आपके पास क्या है? mm साइज ऑफ योर कोर्स एग्रीगेट। तो उसमें फाइनेंस मॉडुलस आपके पास कितनी गिवन थी? 2.8 गिवन थी ना फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड? यस सर, ये गिवन थी ना। 0.67 हो जाएगा। तो 0.67 जो है ना, 0.67 ऑफ व्हाट? bulk volume of rodded coarse aggregate per unit volume of the concrete is 0.67। सर अच्छा, इसमें ना अगर हम जो है ना सिर्फ कोर्स एग्रीगेट होते तो 0.67% जो है ना, जो 67% ऑफ द कंक्रीट वॉल्यूम शुड बी कंपोज्ड ऑफ दैट एग्रीगेट, ठीक है ना। सही है ना। इस मतलब इस रॉडेड कंपैक्टेड जो ना सिर्फ कंक्रीट ही है ना। अगर कंक्रीट की जगह हमको सिर्फ कोर्स एग्रीगेट रख दें तो वो कोर्स एग्रीगेट जो है ना इतना वॉल्यूम इसका ऑक्युपाई करेंगे, तो बाकी जो है ना वॉइड्स रह जाएंगे पीछे। वॉइड्स कितने रह जाएंगे? 33%, ठीक है ना। तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हैं। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कोर्स एग्रीगेट का जो है व्हाट शुड बी द कोर्स एग्रीगेट इन टर्म ऑफ देयर केजी। आपके पास रॉडेड डेंसिटी आपको नोन थी, डेंसिटी नोन थी, उसका वॉल्यूम कितना हमने फाइंड किया? 0.67। तो 0.67 को मल्टीप्लाई करें डेंसिटी से, यू विल गेट द केजी इन टर्म ऑफ केजी ऑफ देयर वेट। कितना है आपके पास? 1072 केजी वाटर आ गया। सर ये 1600 ये रोडेड पर डेंसिटी थी सर एग्रीगेट की। एग्रीगेट की ना रॉडेड कंपैक्टेड डेंसिटी इसलिए थी ना कि हमने एग्रीगेट को बिल्कुल फुली कंपैक्ट किया रॉड से। तो ये शो करता है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की जगह जो है ना सिर्फ एग्रीगेट ही होते, कोर्स एग्रीगेट ही होते, तो वो 1600 केजी उसका वेट होता। कितना वेट होता? 1600। अभी कहां से? अभी बस खत्म होगी। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं आ जाता हूँ। ठीक है बच्चों, अभी क्लास को यहाँ से यहीं खत्म कर लेते हैं। एंड फॉर टुडेज क्लास आई विल मार्क यू डबल प्रेजेंट, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गई है? जो है 1 घंटा 15 मिनट हो गए ना, सही है ना। आई विल मार्क 2P फॉर दिस क्लास, सही है। एंड नेक्स्ट क्लास कब है? फ्राइडे को है ना? फ्राइडे। यस सर। फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो? सर यूनिवर्सिटी कब खुलेगी सर? यूनिवर्सिटी जो है ना, आपका जो बैच है ना, कौन सा सोफोमोर हो क्या हो आप लोग? यस सर, सोफोमोर है। अच्छा, आप जो है ना 11-12 को यूनिवर्सिटी आएंगे और 13 से आपकी जो क्लासेस हैं यहाँ से फिजिकल मोड में होंगी। और एग्जाम कब है सर? और आपका एग्जाम जो है ना 21 से है मेरे ख्याल में। सही है सर, ये तो गुड हो गया। और जो बाकी जो दूसरे बच्चे हैं वो जो है ना 6th ऑफ दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, ठीक है। 5-6 को आ रहे हैं, फिर आगे उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उनका एग्जाम 14 से ऑनवर्ड है, 14 और 15। बाकी बच्चे नहीं, आप सीनियर जो हैं, जूनियर्स एंड सीनियर्स। जबरदस्त।
ठीक है, सही है ना। मुझे आप ना लिखें अभी के मैं जो आना चाह रहा हूँ और हम सबको मंगवा रहे हैं, ठीक है। सही है सर, सही है। हाँ ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको कोई बच्चा मुझसे मजीद पढ़ना चाहे ना तो वो मुझसे टाइम ले ले, और उसके लिए जो ना आई विल बी अवेलेबल एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है ना। तो मैं जो ना मौजूद रहता हूँ ऑफिस में भी, अगर वो ऑफिस पढ़ना आए तो देन आई एम अवेलेबल इन माई ऑफिस, और ऑनलाइन मुझसे टाइम ले ले तो आई एम अवेलेबल फॉर दी ऑनलाइन, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना, और मुझे कोरोना का कोई खर्चा नहीं है कि आई गॉट डबल वैक्सीन, सही है ना, सेकंड वैक्सीन भी लगा दी है माशाल्लाह। जी। सर फाइनल के पेपर में प्री मेड पोर्शन इंक्लूड होगा कि नहीं सर? सब कुछ होगा, हर चीज होगी, ये ठीक है। भी थैंक सही यू। हो गया। परेशान नहीं होना यार, आप लोगों ना परेशान हो जाते हो, ठीक है ना। बड़ा इजी सा सब्जेक्ट है, इजी सी सारी चीजें हैं सारी। हाँ, आपको जो ना आप एक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सर। ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज का अफसोस रहेगा कि अभी क्लास जो ना फिजिकल मोड में नहीं हो सकी, फिर आपको बहुत मजा आता, ठीक है। सर ये एक्सपेरिमेंट करा दे बस सर ऑनलाइन आप। मजा आया सर। एक्सपेरिमेंट करवाएंगे आपको, आप